Now, today we will discuss photoelectric effect when radiations with certain minimum frequency. Student, minimum frequency. When radiations with certain minimum frequency strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of a metal. So these are the radiations, light radiations, photons strike over this metal surface. This is the metal. This is the metal. So when radiations of certain minimum frequency, radiations of certain minimum frequency means it has minimum energy to strike the surface of a metal. These radiations strike the surface of a metal. The electrons are ejected from the surface of the metal. So from this surface of metal, electrons are ejected. So whenever photons of certain minimum amount of energy or minimum frequency strike the surface of a metal, this is the metal and this is the surface of a metal. So when radiations with certain minimum frequency strike the metal surface, the electrons are ejected from this surface of metal. This phenomenon is called photoelectric effect. इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? photoelectric effect. And the electrons emitted, जो ये electrons emit हो रहे हैं इस surface of metal से, the emitted electrons are called photoelectrons. So these electrons are called photoelectrons and the current constituted by these photoelectrons. So student, ये वाले electrons अब कहाँ flow करेंगे? आपके किस circuit में flow करेंगे? So when these electrons are flow to the circuit, then the current is produced. So the current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current. So whenever these electrons flows through the wire or in any circuit, then the current is produced and that current produced is called photoelectric current because these electrons are called photoelectrons. Why they are called photoelectrons? Because when photons means light of certain minimum frequency strike over the surface of metal, the electrons are emitted from this surface of metal. So that's why these emitted electrons are called photoelectrons, because the cause of these emitted electrons is photon. Why these are called photoelectrons? Because reason of emittance of electrons from this surface of metal, क्या रीजन है स्टूडेंट आपका? फोटोन. सो व्हेन फोटोन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ओवर द surface of a metal, the electrons are emitted from this surface and these electrons are called photoelectrons and current produced by these photoelectrons is called photoelectric current. This is a new concept. So electrons are ejected only if radiation striking the surface of metal has at least a minimum frequency. मैंने स्टूडेंट आपको मिनिमम आपकी ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. हर विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से आपके इलेक्ट्रॉन्स अमिट नहीं होंगे. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे ओनली इफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल हैज एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी. कम से कम कोई एनर्जी, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या नाम है स्टूडेंट? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द minimum frequency to eject the electrons from the surface of metal, and the minimum potential at which the plate photoelectric current becomes zero is called stopping potential. अब स्टूडेंट अगर हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो वेन एवर वी स्ट्राइक द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी more than threshold frequency, then these electrons are emitted from the surface of metal, gain some kinetic energy. To stop these electrons, we apply certain minimum potential called stopping potential. So एमिट करवाने के लिए स्टूडेंट कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड
उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने रोकना है, अब ये तो स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाएंगे, अब जब हमने सर्किट को स्टॉप करना है, बंद करना है, तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। सो जो ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं मेटल सरफेस से, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें कौन सी पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस दीज फोटोइलेक्ट्रॉन्स, एंड to stop these photoelectrons or to stop the photoelectric current, we apply certain potential called stopping potential. ठीक है स्टूडेंट। The velocity or kinetic energy of the electron ejected depends upon the frequency. अब स्टूडेंट हमने जो यहां पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, आपकी ज्यादा। सो वी कैन रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बाय न्यू नॉट. Nu naught is the representation of threshold frequency, and nu is the frequency of light that is applied to the metal surface. So if the frequency applied to the metal surface is more than threshold frequency, then electrons are emitted from these metal surface and also gains kinetic energy. And velocity or kinetic energy of the electron ejected depends on the frequency of incident radiation. So जितनी हम frequency of light ज्यादा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, E is equal to h nu, उतनी उस फोटोन और लाइट की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस से, उसको कहते हैं स्टूडेंट वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। So W naught or phi naught is the work function, means minimum energy required to remove the electron from metal surface, and जो एनर्जी स्टूडेंट बाकी बच जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी से क्या करेंगे, मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एनर्जी अप्लाइड टू द मेटल सरफेस। जितनी आप ज्यादा एनर्जी अप्लाई करोगे उतनी इस इलेक्ट्रॉन्स की जो अमिट हो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। जो ये काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर, बट नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ incident light. This kinetic energy of photoelectrons emitted depends on the energy or frequency of incident light, but is independent of intensity of incident light. Intensity के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी स्टूडेंट, ये kinetic energy किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मींस एनर्जी ऑफ लाइट के ऊपर जो आपने मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करनी है। एंड द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। अब स्टूडेंट यहां से क्या अमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं। These number of photoelectrons ejected is directly proportional to the intensity of incident radiation. अब स्टूडेंट जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट, ज्यादा होंगे। फिर से ध्यान से देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ेंगे। नंबर, काइनेटिक एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ज्यादा तो करंट प्रोड्यूस भी क्या होगा स्टूडेंट, आपका ज्यादा। करंट को हम स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो करंट प्रोड्यूस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इज मोर। ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला, 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इस लाइट की, इस फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस। इफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड देन करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपका क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो
velocity or kinetic energy of electron emitted depends on the frequency of incident radiation and number of photoelectrons or photoelectric current produced is directly proportional to intensity of incident radiation. ठीक है स्टूडेंट. सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुए स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स कम आउट एज सुन एज लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी. मैंने पहले कहा हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे स्ट्राइक करनी है मेटल सरफेस? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. कितनी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू emit the electron, to remove the electron from the metal surface is called threshold frequency, and corresponding wavelength is called threshold wavelength because nu is equal to c over lambda. Nu naught is the threshold frequency and lambda naught is the threshold wavelength. So minimum frequency required to remove the electron from the metal surface is called threshold frequency. So electrons come out as soon as light of sufficient energy strike the metal surface. स्टूडेंट जैसे ये आपके लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी, तभी as soon as तभी क्या एमिट होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द एमिटेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड, द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू कॉज इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मैंने पहले कहा स्टूडेंट ये नहीं कि कोई भी लाइट की फ्रीक्वेंसी हम इस मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे तो स्टूडेंट आपके घर में इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते रहेंगे. क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस तो आपके घर में होती है और लाइट भी होती है, विजिबल लाइट. क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? नो. सो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. सो लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. हर लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए. देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच कैन जस्ट कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इंसिडेंट लाइट फॉल करवाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा. जस्ट क्या होगा? रिमूव होगा विदाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी. सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, अगर हम फोटोन की एनर्जी, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट? रिमूव होगा विदाउट गेन इट्स काइनेटिक एनर्जी. So threshold frequency is the minimum frequency which can just cause the ejection of electron and this frequency varies with the nature of metal. So student आपका अगर metal change कर दें, for example सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, इन सब की नेचर क्या है? डिफरेंट है. So ये जो नेचर है, ये टाइप ऑफ मेटल है, उस मेटल की टाइप के अकॉर्डिंगली हमने यहां पे लाइट की एनर्जी स्ट्राइक करनी है. फॉर एग्जाम्पल cesium required lesser amount of energy as compared to potassium to emit the electrons. So frequency varies with the nature of metal. So when the metal changes, तो हमें जो यहां पे लाइट इंसिडेंट करवानी है उसकी एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी. सो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, मोर एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव. जितनी हम लाइट की एनर्जी ज्यादा स्ट्राइक करेंगे उतनी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन्स देन रेड लाइट. सो ये आपको पता होगा स्टूडेंट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वायलेट टू रेड वेवलेंथ क्या करती है स्टूडेंट? इंक्रीज करती है. और वायलेट टू रेड फ्रीक्वेंसी क्या करेगी स्टूडेंट? डिक्रीज करेगी. फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो वायलेट टू रेड आपकी वेवलेंथ क्या कर रही है स्टूडेंट? इंक्रीज कर रही है, बट फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. सो ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट से क्या है? ज्यादा. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा. अगर हम ज्यादा एनर्जी की लाइट स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर
जो ये इलेक्ट्रॉन होगा अमिट होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ठीक है स्टूडेंट, सो ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन्स देन रेड लाइट। सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने पहले कहा जो आपकी करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इफ एमिशन इज परमिटेड, वो तो है स्टूडेंट, हमें कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्राइक करनी पड़ेगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ए ब्राइट लाइट मींस इट हैज मोर इंटेंसिटी, ब्राइट लाइट हैज मोर इंटेंसिटी, ए ब्राइट लाइट yields more photoelectrons than a dim light of same frequency but the electron energies remains the same. So अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल हम ब्राइटर लाइट यूज कर रहे हैं, तो ये एनर्जी सेम रहेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो अमिट हो रहे हैं यहां से वो क्या होंगे स्टूडेंट, आपके बढ़ जाएंगे। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी। और अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल ब्राइटर लाइट यूज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, हमारा करंट, क्या इंक्रीज होगा, करंट। ठीक है स्टूडेंट, सो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ध्यान से स्टूडेंट इसको सुनना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ light must have stream of energy particles और quanta of energy h nu। स्टूडेंट ये आपने जो लाइट एनर्जी फॉल करवानी है उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इस मेटल सरफेस से अमिट हों तो उनके पास क्या हो, काइनेटिक एनर्जी, क्या हो, काइनेटिक एनर्जी। सो लाइट मस्ट हैव स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी एच न्यू। Suppose the threshold frequency of light required to eject electrons from a metal surface is nu naught. So nu naught is the threshold frequency required, minimum frequency required to eject the electrons. When a photon of light of this frequency strike a metal, it imparts its entire energy h nu naught add to the electron. So student अगर हम एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, h nu naught, एनर्जी कॉरस्पॉन्डेंस टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, रिमूव होगा, ये आगे काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा, बिकॉज हम कितनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की। सो व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ए मेटल, इट इंपार्ट्स इट्स एंटायर एनर्जी, जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की थी एच न्यू नॉट, वो सारी की सारी एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी, टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन आगे काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। सो इट मींस जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमें फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी लाइट एनर्जी की, वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अगर 2 जाउल की जरूरत है, तो अगर हम 2 जाउल ही सप्लाई करेंगे तो सारी की सारी ये 2 जाउल की एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, नॉट टू गेन एनर्जी। और अगर हम फॉर एग्जांपल 2 जाउल से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 3 जाउल एनर्जी सप्लाई कर दी, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस इज 2 जाउल। सो रिमेनिंग 1 जाउल बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, हमने 3 जाउल की एनर्जी सप्लाई की थी लाइट एनर्जी, 2 joule energy is required to remove the electron, and that energy required is called work function of metal, because this depends on metal. Every metal has different work function, has different threshold energy required. Now for example हमने 3 joule की लाइट एनर्जी सप्लाई की थी, 2 joule एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, तो रिमेनिंग 1 जाउल जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट, वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है स्टूडेंट, सो अब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अगर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, आपका रिमूव होगा। सो दिस एनर्जी इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम बाय ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस।
सो ये हमें पता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड विद द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने कितनी एनर्जी की सप्लाई कर दी, एच न्यू नॉट, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एच न्यू नॉट एनर्जी सिर्फ किसके लिए यूज होगी, जो ये अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का, इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो दिस एच न्यू नॉट एनर्जी enables the electron to break away from the atom by overcoming the attractive influence of the nucleus। means हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन था, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन था इसके साथ क्या था, अट्रैक्टेड विद द न्यूक्लियस। हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की, वर्क फंक्शन मींस एच न्यू नॉट एनर्जी सप्लाई की। तो क्या हुआ, सिर्फ ये जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस था बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वही क्या हुआ, वही ब्रेक हुआ। सो दस ईच फोटोन कैन इजेक्ट टू वन इलेक्ट्रॉन, ईच फोटोन, वन फोटोन प्रोड्यूस वन इलेक्ट्रॉन। So each photon can eject one electron if the frequency of light is less than nu naught। अगर हम फ्रीक्वेंसी इस लाइट की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अमिट नहीं होंगे। क्यों नहीं अमिट होंगे, क्योंकि जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस था बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी जो हमने अगर हमने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सप्लाई की है, तो ये जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है स्टूडेंट वो ब्रेक नहीं होगा। अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से रिमूव नहीं होगा। सो देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज हायर देन न्यू नॉट। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या किया, हमने ज्यादा सप्लाई कर दी। सो ईच फोटोन ऑफ दिस लाइट हैविंग हायर एनर्जी एच न्यू नॉट विल इम्पार्ट सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज नीडेड टू रिमूव इट फ्रॉम द एटम। द एक्सेस एनर्जी वुड गेन सर्टेन वेलोसिटी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको समझा चुका हूं, हमें एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से 2 जूल, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं 3 जूल, रिमेनिंग 1 जूल क्या बनेगी स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, let it be nu, the photon of this light having higher energy will impart energy to the electron। so इसको तो फिक्स एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए, डेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है स्टूडेंट, ज्यादा। सो बाकी जो एनर्जी आ गई वो किसके पास आ गई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास। द एक्सेस एनर्जी वुड गिव ए सर्टेन वेलोसिटी दैट इज काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आ गया आपका आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एब्जॉर्ब एनर्जी, स्टूडेंट ये कौन सी एनर्जी है, एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू किस किस में कन्वर्ट हो रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहां एनर्जी सप्लाई की E1, इसका वर्क फंक्शन है W0। अब जो बाकी बचा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एच न्यू जो हमने एनर्जी सप्लाई की है, ये एनर्जी जो हमने सप्लाई की है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स। One part is equal to work function or threshold energy, means minimum energy required to remove the electron. So remaining part of energy becomes kinetic energy of photo electrons. ठीक है स्टूडेंट, so h nu naught is the minimum energy required to remove the electron. This is a h nu naught, this is a work function, this is a
वर्क फंक्शन फाई और डब्ल्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू नॉट. न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो एच न्यू इज द energy of incident light. H nu is the energy of incident light. H nu naught energy is required to remove the electron, and rest of the energy, जो remaining energy बच गई स्टूडेंट, वो क्या आ गई? Kinetic energy of electron. So this H nu goes into two parts, H nu naught, and remaining part becomes kinetic energy. So H nu is equal to work function plus kinetic energy. Means H nu is equal to H nu naught plus 1 by 2 mv square. So nu is the frequency of incident light, nu naught is the threshold frequency, H nu naught is the threshold energy or work function that is denoted by phi. H nu naught is the minimum energy of the photon to emit the electron and it is constant for a particular metal. ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए. जो ये वर्क फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके नेचर ऑफ मेटल के ऊपर. क्यों? क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बाउंड है विद द न्यूक्लियस, वो स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर. अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस न्यूक्लियस के ऊपर. अब इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल के ऊपर, क्योंकि एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फॉर एग्जांपल ये आपको समझा देता हूं स्टूडेंट. दिस इज ए एटम. एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट मीन्स जो ये न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इफ एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो एवरी मेटल हैज डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज. इफ एवरी मेटल हैज डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, देन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? डिफरेंट. मीन्स एवरी मेटल हैज डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इफ These attractive forces are different, तो स्टूडेंट हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो भी क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? डिफरेंट. एवरी मेटल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन बिकॉज एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इफ एवरी मेटल हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन एवरी मेटल हैज डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, जो उनमें एनर्जियां सप्लाई करनी है, एनर्जी अब्सॉर्ब बाय मेटल और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट. सो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल. ठीक है स्टूडेंट. इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं अगर हम एटम्स कौन से लेंगे? गैसियस एटम्स. ठीक है स्टूडेंट. फॉर गैसियस एटम्स के लिए जो ये वर्क फंक्शन है इसका क्या नाम है स्टूडेंट? आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट. सो ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1 by 2 mv स्क्वायर. और 1 by 2 mv स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट आपका? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ये उधर चला गया स्टूडेंट आपका एच न्यू नॉट. और एच न्यू क्या स्टूडेंट आपका? एच सी ओवर लैम्डा. और न्यू नॉट क्या होगा? एच सी ओवर लैम्डा नॉट. और यहां से एच सी क्या आ गया स्टूडेंट आपका? कॉमन. ये एच सी कॉमन आ गया तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका फार्मूला? 1 over लैम्डा माइनस 1 over लैम्डा नॉट. सो 1 by 2 mv स्क्वायर मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा एंड एच सी इज कॉमन. यहां से एच सी क्या आ गया स्टूडेंट आपका? कॉमन आ गया. तो बाकी क्या बच गया? 1 over लैम्डा माइनस 1 over लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है स्टूडेंट. सो अबव इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इस इक्वेशन का क्या नाम है स्टूडेंट आपका? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल. द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड. कहां पे अप्लाई करनी है स्टूडेंट आपने? एनोड पे. एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो. अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ गए हैं आपके न्यूक्लियस से, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं. जैसे आपका कैलकुलेटर है स्टूडेंट. अगर किसी ये सर्किट में फ्लो कर रहे हैं तो सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन कभी ना कभी हमने अपना सर्किट क्लोज करना है. तो सर्किट को क्लोज करने के लिए, ये करंट को जीरो करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट? स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या अप्लाई करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल एट द एनोड.
द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रॉन्स को जो एमिट हो चुका है उसको स्टॉप करवाने के लिए हमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साइन क्या है, नेगेटिव। और अगर हम एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल इसके पास है -10 वोल्ट, अगर हम +10 वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो द मिनिमम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड, तभी मैं बोल रहा हूं एनोड, एनोड पे स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल। एट विच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साइन नेगेटिव होता है, तो कहां पे हमें पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, एनोड पे। एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है स्टूडेंट, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं न्यूक्लियस से, उनकी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। अब जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही हमें एनर्जी की स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी। और इफ वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ वी नॉट इज द stopping potential, then stopping energy required to stop the maximum accelerated electron is equal to EV naught, is equal to EV naught, and EV naught is equal to क्या आएगा स्टूडेंट, 1/2 mv square, because 1/2 mv square is the maximum kinetic energy of photoelectron। और उतनी एनर्जी की अगर हमने पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड पे अप्लाई कर दी, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप्स। इफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स not flowing then current is zero। ठीक है स्टूडेंट। so next is application of photoelectric effect, photo cell। so same principle है स्टूडेंट आपका, this is the light and this is the cathode, this is a metal plate, negative metal plate cathode। ये हमने पोटेंशियल अप्लाई की हुई है, ये नेगेटिव है, ये आपका कैथोड है। यहां से क्या आई स्टूडेंट, आपकी लाइट एनर्जी आई। लाइट एनर्जी से यहां से क्या मीट हुए, इलेक्ट्रॉन्स मीट हुए, वो कहां गए, एनोड की तरफ। इन वायर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए। और स्टूडेंट अगर इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए तो इस वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। और ये करंट हम आगे यूज करेंगे किसी सर्किट में। So certain amount of energy is required to make an electron emit of a metal, certain मतलब threshold energy, and photoelectrons are emitted if it absorbs a photon from the light beam that has enough energy, high frequency। अगर ये मिनिमम एनर्जी ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हमारी जो लाइट एनर्जी थी वो क्या थी, मिनिमम थ्रेशोल्ड, और हमने जो अप्लाई करनी है वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे वो कहां जाएंगे, एनोड की तरफ। एनोड से ये सर्किट आपका बाहर वायर्स में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स वायर में आ गए, तो ये वायर में क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट। सो करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट। क्या होती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, एंड दिस करंट वी कैन यूज इन फोटो सेल्स। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस बल्ब में मूव करेंगे, देन बल्ब ग्लो। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेल। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।